Good morning, my lovely students. Class 4th. How are you? I hope you all are fantastic and enjoying my video. Today is your computer online class and I am your Sudha ma'am and I will teach you computer today. This is your computer book, children, for class 4th. Open your books. So children, today we are going to continue with chapter 8, PowerPoint 2013. Introduction to PowerPoint 2013. Today's date is 19th of December 2020 and day is Saturday. So hope you all are fresh this morning, and so let's start with the computer chapter. I had explained you what is PowerPoint, children. Introduction I had given to you, how to start the PowerPoint and what are the main features in it. So we will continue with this chapter, and before we start the next part of this chapter, we will revise what we had done in the previous video. So we will revise what is PowerPoint 2013 and how it is started. So these are the elements today which we are going to study in this chapter. The first one is how to create a new presentation. We had start with this paragraph starting I had read for you, and then we are going to do inserting a new slide in it. In PowerPoint 2013, how we can insert a new slide and how we can save our presentation which we have prepared in a computer. Then after saving it, how can you close it when your presentation is over and you have saved it? How to close the PowerPoint 2013 presentation. Then last point is how to open the presentation. When once you close it and again you want to work on that presentation, how can you open it? So these are the main elements of the chapter today. So let's begin. What is a PowerPoint 2013? It's related to a presentation which you prepare in your computer. A presentation is a process of presenting a topic to an audience. जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाते हैं किसके ज़रिए? अब हमारी एक फ़ाइल बनाते हैं, उसमें अच्छी तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी चीज़ को जब हम तैयार करते हैं उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। इट इज़ टिपिकली अ डेमोन्स्ट्रेशन। एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह होता है प्रेजेंटेशन। एक लेक्चर भी हो सकता है, एक स्पीच भी हो सकता है। टू इन्फॉर्म एंड परसुएड और बिल्ड द गुडविल। हमारे बिजनेस फर्म या जो भी कंपनी हम चला रहे हैं उसके गुडविल के लिए हम ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। The most common and user-friendly software used for creating a presentation is PowerPoint. PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही फ्रेंडली यूज़र है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस पर वर्क कर सकते हैं हमारा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। सो ये रहा एक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन PowerPoint 2013 का। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो ये सॉफ्टवेयर है PowerPoint 2013, हाउ टू स्टार्ट इट। फर्स्ट यू हैव टू click on the start button, go to all programs, and there you have Microsoft Office 2013, and then in Microsoft Office 2013 you have PowerPoint 2013. अब ये PowerPoint 2013 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये प्रेजेंटेशन ओपन होकर आ जाएगा। So from there you have to learn the tools and other options from when you can click the button and go to other options. So children, turn the page number 70. Now I had also explained you what are the parts of PowerPoint: title bar, ribbon, dialog box launcher, slide navigation, ruler, slide pane, placeholder, notes, comments, view button, and then slide sorter and reading views. How to zoom in, zoom out in the computer for your slides. Then
In the next page, I had explained you about how to scroll the vertical and horizontal areas. Then we had start with creating a न्यू प्रेजेंटेशन. जब हम किसी न्यू प्रेजेंटेशन पे वर्क करना शुरू करते हैं तो उसको पहले क्रिएट कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हम थीम्स को सिलेक्ट करते हैं. हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक बढ़िया सा कलरफुल और इफ़ेक्टिव लिखा हुआ थीम यूज़ करते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन के लिए कैसा थीम होगा. तो उसे फॉलो करने के लिए सेवरल स्टेप्स हैं. इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ वी विल डू थीम्स फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उस पर पहले सबसे पहले एक ब्लैंक स्क्रीन आता है. अब उस पर हम कैसे वर्क करेंगे, तो वहाँ पे हम थीम्स कैसे लाएंगे. क्लिक द डिज़ाइन टैब. आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करिए. इन द थीम्स ग्रुप क्लिक द मोर बटन. दिस विल ओपन द थीम्स गैलरी. यहाँ पर आप थीम्स गैलरी में जाएंगे. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम. जिस भी थीम को आपको सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करिए और माउस की राइट बटन पे क्लिक करिए. वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं कि आपके थीम्स जो हैं वो कैसे आपके प्रेजेंटेशन पे शो करेंगे, कैसे लगेंगे. तो सबसे पहले हम व्यू करेंगे और राइट बटन को क्लिक करके. अदरवाइज़ अगर आप राइट बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका जो थीम है वो फुल स्क्रीन पे आपके प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माउस के राइट बटन पे ही क्लिक करना है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. पेज नंबर 73. हियर नाउ टेम्पलेट. हम टेम्पलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लिए. ओके, टेम्पलेट यूज़ करके हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं. तो उसको फॉलो करते हैं स्टेप्स को. अ टेम्पलेट इज़ अ प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड्स कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन. एक टेम्पलेट जो है वो प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन होता है. वो पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ एक ऐसा कह सकते हो प्रेजेंटेशन टाइप होता है जो कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइंस होता है. इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. जब हम न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा टाइम और एफर्ट सेव कर लेता है ये. ओके, क्या यूजिंग टेम्पलेट टू क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट. प्रेजेंटेशन को हम जब क्रिएट करते हैं टेम्पलेट के द्वारा तो उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं आइए देखते हैं. लेट्स सी चिल्ड्रन. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक द फाइल टैब. द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर. जब आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक व्यू ओपन होगा. सिलेक्ट न्यू. आप न्यू पे सिलेक्ट करिए. यू कैन क्लिक सजेस्टेड सर्चेस टू फाइंड द टेम्पलेट्स और यूज़ द सर्च बार. आप सर्च बार पे जाके टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम द डिज़ाइन टैब नेक्स्ट है फ्रॉम द डिज़ाइन टैब क्लिक द बटन फर्देस्ट टू द राइट. फॉर्मेट बैकग्राउंड. अ प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट्स विल अपीयर. एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू आपके सामने आ जाएगा टेम्पलेट्स का. प्रीव्यू सॉरी. एंड यू कैन देन सी हाउ द templates or the designs can apply on your presentation. Like click create to use the selected template. हम create पे क्लिक करेंगे. जो भी हमने सिलेक्ट किया है टेम्पलेट को उसे हमें अपने प्रेजेंटेशन में लाने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे. अ न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट. ओके, a new presentation will appear with the selected template. Inserting a new slide. Now how to insert a new slide in our presentation. हम अपने न्यू प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को कैसे ला सकते हैं. ओके, हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इट विल कंटेन वन स्लाइड. जब हम न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें तो उसमें केवल ओनली वन स्लाइड होता है. टाइटल स्लाइड लेआउट. यू कैन इंसर्ट एज मैनी स्लाइड्स एज यू नीड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट लेआउट्स. आप अपने प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स को अप्लाई कर सकते हैं. किसके द्वारा? डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिफरेंट लेआउट्स. Let us continue with the droplet theme we had selected earlier.
टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड डू एज फॉलोज। ये सारे स्टेप्स हैं आपके प्रेजेंटेशन में एक अच्छा न्यू स्लाइड लाने का, इंसर्ट करने का। फ्रॉम द होम टैब, अब होम टैब पे आपको क्लिक करना होगा स्लाइड्स को लाने के लिए, शो करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन पे। तो इंसर्ट, click on home tab and then click the bottom half of the new slide command. Choose the desired slide layout. Choose the desired, जो भी आप चाहते हैं स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन पे आ जाए उसे आपको चूज़ करना है मेनू में जाकर। द न्यू स्लाइड विल अपीयर, आपके स्क्रीन पे न्यू स्लाइड अपीयर होगा। क्लिक एनी प्लेस होल्डर एंड बिगिन टाइपिंग टू ऐड टेक्स्ट। आपको क्लिक करना है प्लेस होल्डर पे जो है एक पार्ट पावर पॉइंट का, और देन आपको टाइप करना है। यू कैन ऑल्सो क्लिक एन आइकॉन टू ऐड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट। आप आइकॉन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्या करने के लिए? टाइप करने के लिए। कोई भी कंटेंट आपको टाइप कुछ लिखना है तो इस पर आप क्लिक करिए, सच एज पिक्चर और अ चार्ट। द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 74। To change the layout of an existing slide, click the layout command, then choose the desired layout. To quickly add a slide that uses the same layout as the selected slide, click the top half of the new slide command. ये है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऐड करना है टाइटल आपके प्रेजेंटेशन के लिए। To quickly add a slide having the same layout as the selected slide, simply click the top half of the new slide button. Now कैसे हमें टेक्स्ट लिखने वाला जो है वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। वट एवर टेक्स्ट हम राइट करते हैं, जो भी टेक्स्ट नेम हम देते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को, हम कैसे उसको इंसर्ट करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में। टू ऐड अ टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर पे, ये प्लेस होल्डर है जहाँ हमें कुछ टेक्स्ट राइट करना है। तो क्लिक इनसाइड एंड स्टार्ट टाइपिंग, हमें यहाँ पे कर्सर ले जाके अंदर क्लिक करना है और स्टार्ट करना है टाइपिंग। इंसर्टिंग पिक्चर्स कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में। यू कैन ऐड पिक्चर्स टू योर प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। You can insert pictures from a file on your computer as well as pictures from the internet, online pictures. हम कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव किए हुए कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, और अगर अदरवाइज़ हमें कुछ और पिक्चर्स चाहिए तो ऑनलाइन भी हम उसको हमारे प्रेजेंटेशन पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, उसके ये स्टेप्स हैं, फॉलो करिए। क्लिक द इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक द पिक्चर्स बटन इन द इमेज ग्रुप्स। So now you will click on the pictures button in the images group. The insert pictures dialog box appears. So that opens and then you can select the desired picture and insert it by clicking on it. The picture will appear in the selected slide. So children, this was easy. You can just click on the insert tab and then select a picture from the images option, and then you can put it in your presentation. Next page, page number 75 children, inserting online pictures. This was how to get from the files present already saved in your computer, and this is how you can get the pictures online in your presentation. So these are the steps. How can you get the pictures online? How can you insert an online picture in your presentation? Click on the insert tab, click on the online picture button in the images group. Then the insert pictures pane appears. आपके सामने insert किए हुए pictures pane appear होंगे. Type a search term in either office.com. वहाँ पे आप टाइप करिए जो भी पिक्चर्स के नेम, आप जैसे आपको प्लांट्स के पिक्चर्स चाहिए तो आप प्लांट्स टाइप करेंगे और आपके सामने कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन आ जाएंगी। तो वहाँ से आप उसे क्लिक करके आप अपने प्रेजेंटेशन में उसे इंसर्ट कर सकते हैं।
Okay, this was how to insert an online image or a picture. Then after doing this, how to save the presentation. Now main thing is how to save it. The step to save a presentation are as follows. First क्या करेंगे आप on the file tab पे आप select save. Okay, डायरेक्टली आप सेव कर देंगे. डू ऑफ द फॉलोइंग. देन नेक्स्ट पेज पे है, आगे क्या करना है हमें. टू सेव टू योर लोकल ड्राइव, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि आपके ड्राइव में वो सेव हो जाए. तो सच एज योर लैपटॉप, अ फ्लैश ड्राइव, CD और DVD ड्राइव. सिलेक्ट कंप्यूटर. अगर आप अपने ड्राइव या लैपटॉप या जो भी CD DVD में इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप पहले कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे. टू सेव अ शेयर पॉइंट लाइब्रेरी, सिलेक्ट शेयर पॉइंट. उसके बाद आप शेयर पॉइंट पे क्लिक करेंगे. देन टू सेव योर प्रेजेंटेशन टू अ वेब लोकेशन, सी सेव एंड शेयर अ प्रेजेंटेशन टू वन ड्राइव. लास्ट में आप देखेंगे कि वेब लोकेशन पे जा कर के आप शेयर सेव एंड शेयर करेंगे, तब ये प्रेजेंटेशन जो है आपके ड्राइव में सेव हो जाएगी. दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सेव योर प्रेजेंटेशन. This is other way how you can save it. Under save as recent folder, select browse, pick a path and file folder and then name the file. आप अपने फाइल को नेम देना चाहते हैं तो वहाँ आप select browse करिए, pick a path and file folder and then name the file. एंड लास्ट में आप सिंपली ऊपर जाकर सेव का बटन प्रेस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. सेव योर प्रेजेंटेशन फाइल इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट. आप अपने प्रेजेंटेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे. दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो टू सेव द फाइल इन PDF और XPS फाइल फॉर्मेट. सी द सेव एज PDF और सेव एज XPS. ओके, देन ऑन द फाइल टैब सिलेक्ट सेव एज. आप अपने कंप्यूटर के फाइल टैब पे क्लिक करके सेव एज कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा. देन नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन. आप अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करते हैं. दीज आर द स्टेप्स टू क्लोज द प्रेजेंटेशन. दे आर एज फॉलोज. क्लिक द फाइल टैब. आप फाइल टैब पे जाइए. क्लोज करने के लिए आप सिंपली क्लोज लेफ्ट पेन पे क्लोज का जो टैब है उसे क्लिक करिए. इफ़ द प्रेजेंटेशन हैज़ नॉट बीन सेव, तो वहाँ पे आपके सामने एक मैसेज में बॉक्स दिखाई देगा कि change you to it will ask you to save the changes you have made. Click on save if you want to save the changes. अगर आप कुछ आपने changes किए हैं तो उसे आप सेव करना चाहते हैं तो उस पर yes कर दीजिए. अगर don't save है तो no करिए. क्लिक ऑन कैंसिल. अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं और आप बैक हो सकते हैं. रिटर्न टू द प्रेजेंटेशन. नाउ आफ्टर क्लोजिंग, अगर आपने क्लोज कर दिया है तो आप अगेन उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है स्टेप्स. क्लिक ऑन फाइल टैब. अगेन आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है. बैक स्टेज व्यू अपीयर्स. ओके, देन क्लिक ऑन ओपन. आप ओपन पे क्लिक करिए लेफ्ट पेन पे. आप फिर वापस अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करने लगेंगे. ओके, देन this chapter is over children. Now we will do question and answers. As in the previous video I had given you to write filling the blanks and take the correct answer. Children, see, these are the answers for it. Then we will do question answers. अब हम आज सी यानी क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे. सो आपको होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड and as I say you will mark the answers in your book. First question is, how do you start PowerPoint 2013? आप PowerPoint 2013 को स्टार्ट कैसे करते हैं. इसका आंसर है पेज नंबर 69. टर्न टू पेज नंबर 69. Here it is. Starting PowerPoint 2013. आप यहाँ से राइट करेंगे टू स्टार्ट PowerPoint 2013. फॉलो दी स्टेप्स. सो आप ये दो
2 पॉइंट्स यहाँ का राइट करेंगे एंड नेक्स्ट पेज पे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ तक आप राइट कर लेंगे फर्स्ट आंसर. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. ओके 1. देन you will write second answer. Define quick access toolbar. Page number 70. Open to page number 70, children. What is quick access toolbar? Quick access toolbar lets you an access common command, जैसे कि जो commonly यूज कमांड होते हैं जैसे कि सेव है, undo है, redo है, आपको यहाँ पर quick access toolbar में ये ऑप्शंस दिखाई देंगे. ओके, दिस इज क्विक एक्सेस बार, तो इस पर टिक लगा लीजिए. इट्स हियर. फ्रॉम द क्विक एक्सेस बार यू हैव टू राइट टिल रीडू. आपको रीडू तक राइट करना है सेकेंड आंसर. देन थर्ड आंसर है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिबन इन पावर पॉइंट 2013. सी हियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 70 पर है. रिबन्स. ओके, हियर इट इज. रिबन इज डिस्प्लेड. Ribbon is displayed just below the title bar. The ribbon contains the commands you will need to perform common tasks in PowerPoint. It has multiple tabs, each with several groups of commands. Till commands, you have to write the answer. Now moving on to question number 4. Question number 4. Write the steps to create a presentation using a theme. थीम को यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं. पेज नंबर 72. इट्स ऑन पेज नंबर 72 चिल्ड्रेन. क्वेश्चन आंसर नंबर 4 ये. दिस इज योर आंसर 4. थीम्स फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. यहाँ से आपको शुरू करना है टिल एंटायर प्रेजेंटेशन, यहाँ तक आपको लिखना है. You can take the screenshot. ये आंसर 4 है चिल्ड्रेन. It's on page number 72. Moving on to question number 5. Write the steps to insert pictures online in your document. आपको पिक्चर्स ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, तो वो उसके स्टेप्स क्या हैं. इट्स ऑन पेज 75 चिल्ड्रेन. आंसर 5. Here answer 5 is this. Inserting online pictures. आपको राइट करना है all the 6 points. You have to write till selected slide. Till slide you have to write the answer. Okay children, you have to start from inserting online pictures and you have to end till, you have to completely write the answer till slide. Then moving on to the next question, question number 6. How will you close your presentation? It's on page number 75. आप अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करेंगे? Here, page number 77. Closing a presentation. The steps to close a presentation are as follows. Click the File tab. The Backstage view appears. Click Close in left pane. From click to left pane, you just have to write these 2 points for question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है चिल्ड्रन, क्लिक से लेकर पेन तक. ओके, दिस मच ओनली. सो चिल्ड्रन, ये आपका था होमवर्क. आपको कॉपी और बुक दोनों फिल करना है. प्लीज़ चिल्ड्रन डू योर होमवर्क. ओके, एंड सेंड इट टू मी ऑन संडे. क्लास 4 आपका होमवर्क होगा कि आपको कॉपी में ये 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स राइट करने हैं. गॉट इट? सो डू योर होमवर्क. दैट्स इट फॉर टुडे. आप आज के लिए इतना ही होमवर्क. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट. Okay, next process. So have a nice day. Take care. Thank you.